Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 85 and 86 of Indian Penal Code, which comes under the category of general exception. So, Section 85 and 86 deals with if the person is under the influence of liquor, if the person is under the influence of intoxicants, then what will be his liability, we will discuss under this particular lecture. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 85 और 86। इस पर्टिकुलर सेक्शन में किसी शराबी की या ऐसा पर्सन जो कोई नशे में है उसकी क्या लायबिलिटी होगी अगर कोई पर्सन नशे में कोई ऑफेंस करता है। तो यहां पर वो लायबिलिटी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से नशे में लायबिलिटी अराइज होगी और कब लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। वी विल आल्सो डिस्कस कि द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन दिस पर्टिकुलर टू सेक्शंस and the probable question which may be asked by the examiner on these two sections. So without wasting your much time, let's start the topic. Section 85 and 86, Act of Intoxicated Person. So Section 85 deals with act of person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. So nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. So if the person has committed any act and at the time of doing that particular act he was under the influence of intoxicants and due to such an intoxicants he was unable to know the nature of his act and the consequences of his act, and such intoxicants is administered to him without his knowledge or against his will. अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई ऑफेंस करता है और नशे में रहने के वजह से वो ये नहीं समझ पाया उस वक्त कि उसका एक्ट लॉ के अगेंस्ट में है या उसके एक्ट का नेचर क्या है या उसके एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो इंटॉक्सिकेंट के वजह से नशे के वजह से वो ये पता नहीं कर पाया और वो जो नशा है वो उसने खुद ने नहीं लिया हुआ है बल्कि उसके विल के अगेंस्ट में, उसकी इच्छा के अगेंस्ट में और उसके नॉलेज के बगैर उसको पिलाया गया है। अगर ऐसा है तो सच पर्सन इज इंटाइटल्ड टू टेक द डिफेंस ऑफ सेक्शन 85. So act of person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. When the person is entitled to take the defense of section 85, if such intoxicant is administered against the will of the person. Suppose अगर मैंने कोई ऑफेंस किया है और मैं ये चाहता हूं कि मैं नशे का एक डिफेंस लूं कि मैं नशे की हालत में था इसलिए मैंने ऑफेंस किया, तो मुझे ये प्रूव करना ज़रूरी है कि जो मुझे नशा पिलाया गया वो मेरे विल के अगेंस्ट में, मेरी इच्छा के अगेंस्ट में मुझे पिलाया गया, तभी मैं डिफेंस ले सकता हूं, अदरवाइज नॉट। सो देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स। द फर्स्ट वन इज द अक्यूज्ड मस्ट बी अंडर द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट। सो व्हेन द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 85 if he is under the state of intoxication at the time of commission of offense. ऑफेंस करते वक्त अगर वो नशे में था तब वो सेक्शन 85 का डिफेंस ले सकता है। तो पहला इंग्रेडिएंट्स, ऑफेंस करते वक्त वो नशे में था, ये प्रूव करना पड़ेगा उसको। सेकंड वन इज ही बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन must not know the nature of his act or he must not know that his act is wrong or contrary to law. So due to such an intoxication, the person who wants to take the benefit of section 85 must not know the nature of his act and must not know the consequences of his act. तो जो पर्सन जो नशे का बेनिफिट ले रहा है वो सेकंड इसेंशियल उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो नशे के वजह से मेरे एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस मुझे पता नहीं थे या मैं जो करने जा रहा हूं उसका नेचर मुझे
पता नहीं था। ये सेकंड इंग्रेडिएंट इसको प्रूव करना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन इज दैट द इंटॉक्सिकेंट इज गिवन टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ डिफेंस। मैं खुद अगर शराब पीकर किसी को मारता होगा तो आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस दो आई वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। मैं नशे में था फिर भी मैं लायबल रहूंगा क्योंकि मैंने खुद नहीं पिया हूं। अब सिचुएशन ऐसी है कि यहां पर यह कहा गया है कि जो नशा पिलाया गया वो अगेंस्ट विल होना चाहिए और अगेंस्ट नॉलेज होना चाहिए उस पर्सन के, तभी वो बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज वो बेनिफिट नहीं ले सकता है। मतलब मेरी इच्छा के अगेंस्ट में मुझे पिलाया गया या मेरे नॉलेज के बगैर मुझे पिलाया गया। फॉर एग्जांपल मुझे खाने में अगर कोई नशा डालकर अगर खिलाया गया खाना और जिसके वजह से मैं नशे में आ गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं डिफेंस ले सकता हूं, एंड डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। सो नाउ सेक्शन 85 पे जो प्रोबेबल क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने पूछा हुआ है वो क्वेश्चन है कि व्हेन पर्सन इज इंटाइटल्ड टू टेक द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन अंडर सेक्शन 85 ऑफ इंडियन पीनल कोड, द इंटॉक्सिकेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय हिमसेल्फ, person is incapable of differentiate between right and wrong, person is intoxicated without his knowledge or against his will, none of the above। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो रेड फॉन्ट में है वो इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। अगर उसको जो नशा है उसके नॉलेज के अगेंस्ट में, उसके विल के अगेंस्ट में दिया गया है, तब वो डिफेंस ले सकता है। तो सेक्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 86 इज देयर। In cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge or he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। तो कब पर्सन बेनिफिट ले सकता है कि अगर उसके नॉलेज के बगैर उसको नशा पिलाया गया, या तो अगर उसके विल के अगेंस्ट में उसको नशा पिलाया गया, जबरदस्ती से नशा पिलाया गया, तो वो डिफेंस ले सकता है, अदरवाइज डिफेंस नहीं ले सकता है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हम जो डिस्कस करेंगे इंग्रेडिएंट सेक्शन 86 के। द फर्स्ट वन इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। पर्सन को उसके एक्ट के नेचर पता नहीं था। इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट के नशे के वजह से उसको पता नहीं था कि उसके एक्ट का नेचर क्या है। फर्स्ट वन इज। सेकंड वन इज दैट ही वाज नॉट इन ए स्टेट ऑफ माइंड टू नो दैट द एक्ट वाज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। सो ड्यू टू द इंटॉक्सिकेंट्स ही वाज नॉट इन ए स्टेट ऑफ माइंड दैट द एक्ट वाज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। नशे के वजह से वो इस स्थिति में नहीं था कि जो वो कर रहा है वो गलत है या कोई लॉ के अगेंस्ट में है, ये पता करने के। थर्ड वन इज that the thing was intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। वो जो नशा पिलाया गया था वो उसके नॉलेज के अगेंस्ट में था, उसके विल के अगेंस्ट में था। तो ये सिचुएशन अगर है तभी वो डिफेंस ले सकता है, अदरवाइज नॉट। और लास्ट वन इज एंड दैट वॉलंटरी ड्रंकनेस इज नॉट एक्सक्यूज फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम। इफ द पर्सन टेक एन इंटॉक्सिकेंट्स वॉलंटरीली, अगर वो खुद ड्रिंक करता है, खुद शराब पीता है और शराब पीकर अगर ऑफेंस करता है, तो वो सेक्शन 86 का डिफेंस नहीं ले सकता है। सेल्फ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ डिफेंस। खुद शराब पीना और फिर डिफेंस लेना ये पॉसिबल नहीं है, वैसा डिफेंस अवेलेबल नहीं है। लास्ट वन इज बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द अक्यूज्ड। सपोज इफ द अक्यूज्ड वांट्स टू टेक द बेनिफिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, वो ये बोल रहा है कि मुझे मेरे इच्छा के अगेंस्ट में शराब पिलाया गया, नशा पिलाया गया, मुझे धोखे से नशा पिलाया गया और जिसके चलते मैंने ऑफेंस किया, तो ये प्रूफ करने का बर्डन किस पे रहेगा? अक्यूज्ड पे ही रहेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ। वासुदेव वर्सेस स्टेट, दैट इज द केस। अब ये केस में क्या हुआ था? द अक्यूज्ड वाज अ रिटायर्ड जमादार इन अटेंडेड अ मैरिज पार्टी इन विच ही ड्रंक लिकर हेवीली। एक जमादार था, रिटायर्ड जमादार अक्यूज्ड, वो एक मैरिज पार्टी अटेंड करने गया जहां पर उसने बहुत सारी शराब पी। ही वॉन्टेड टू सिट इन अ चेयर इन विच अ बॉय ऑलरेडी सेट। द अक्यूज्ड आस्क्ड हिम टू स्टैंड सो दैट ही वुड सिट इन इट। तो वो एक चेयर पे बैठना चाहता था जिसपे ऑलरेडी एक बच्चा बैठा हुआ था। उसने बच्चे से कहा कि आप उठो, मैं यहाँ पर बैठना चाहता हूँ। अब हुआ ऐसा, द बॉय रिफ्यूज, बॉयज ने मना कर दिया, उठने से लड़के ने मना किया। द अक्यूज्ड बिकेम अनॉयड एंड शॉट द बॉय विथ हिज पिस्टल
द बॉय डाइड ऑन द स्पॉट। जो अक्यूज था, जो जमादार था, वो बच्चे ने जैसा ही उठने से मना किया चेयर से, उसने अपनी गन निकाला और बच्चे की तरफ फायर कर दिया और बच्चा जगह पे ऑन द स्पॉट बच्चे की डेथ हो गई। अब हुआ ऐसा, देयर आफ्टर द अक्यूज्ड वॉक टू द पुलिस स्टेशन एंड सरेंडर हिम। मारने के बाद वो अक्यूज पुलिस स्टेशन गया और खुद को सरेंडर किया वहां पर। द अक्यूज प्लीडेड दैट ही वाज हेवीली इंटॉक्सिकेटेड। यहां पर अक्यूज ने प्लीड किया कि दैट ही वाज हेवीली इंटॉक्सिकेटेड। उसने ये बोला कि मैं हेवीली इंटॉक्सिकेटेड था, मैं शराब के नशे में मैंने उसको मारा। अब यहां पर ऐसा हुआ, द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड हिम फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आल्सो कन्फर्ड द कन्विक्शन। तो यहां पर ट्रायल कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने उसको मर्डर के लिए सजा सुनाया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने वो सजा को कंफर्म किए। मतलब क्या हुआ कि यहां पर अक्यूज्ड को डिफेंस अवेलेबल नहीं था सेक्शन 86 का। क्यों नहीं था? क्योंकि वो सेल्फ इंटॉक्सिकेशन था, उसने खुद ने शराब पिया ज्यादा और शराब पीने के चलते उसने मारा। तो सेल्फ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ डिफेंस। अनदर केस इज दैट मावरी सूर्या सत्यनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। ये केस में क्या हुआ था? The accused suspected the character of his wife. One day he drank heavily. Some hot exchange of words took place between wife and husband. The accused poured the kerosene on his wife. तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि हस्बैंड को अपनी वाइफ के कैरेक्टर पे शक था और एक दिन उसने बहुत सारी शराब पी और शराब पी कर आने के बाद दोनों के बीच में कॉरल हुआ, हॉट वर्ड्स हुए, गली गलोज हुई और हस्बैंड ने क्या किया, केरोसिन उस वाइफ पे छिड़का और शी ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम द फायर्स एंड रश द आउटसाइड द हाउस। और उसने आग लगा दी और आग से बचने के वास्ते वाइफ बाहर भागी, घर से बाहर। द अक्यूज्ड अगेन कॉट द विक्टिम एंड अगेन पोर्ड द केरोसिन रिजल्टिंग हर डेथ। अक्यूज ने और उसको पकड़ा बाहर जाकर और उस पर और केरोसिन डाला और उसकी आग लगा दी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई। ही प्लीडेड द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अक्यूज ने बोला कि मैं शराब के नशे में था जब मैंने मेरे वाइफ को जलाया। अब हुआ ऐसा, द ट्रायल कोर्ट डिनाइड द डिफेंस एंड कन्विक्टेड हिम अंडर सेक्शन 304 पार्ट 2 कि यहां पर उसका डिफेंस डिनाई किया ट्रायल कोर्ट ने और उसको कन्विक्ट किया 304 पार्ट 2 में। ये कहा कि उसने सडन ग्रेव प्रोवोकेशन में उसको जलाया वाइफ को। ये बेस पे 304 पार्ट 2 में कन्विक्ट किया अक्यूज्ड को। But Supreme Court converted the sentence of accused from section 304 part 2 to 302. But Supreme Court ने वो 304 part 2 के सजा को कन्वर्ट करके 302 में मर्डर के लिए लायबल ठहराया अक्यूज्ड को। Why? क्योंकि यहाँ पर सेल्फ इंटॉक्सिकेशन था, उसने खुद ने शराब पीकर उसने अपनी वाइफ को मारा था। सो ये था सेक्शन जो डील कर रहा था इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.